exercise 3.3. Yesterday we have solved the first question, which was based on the activity. Yesterday I told you that how to do the sum of nth term. Okay, I told you about the two formulas. Okay, so let's see that two formulas. Okay, so now at your screen you can see that there's the two formula that I told you, that formula 1, which is Sn is equal to n by 2 under bracket 2a plus n minus 1d. Okay, and if you know the first term and the last term, so at that time you can use these two formulas, that is Sn is equal to n by 2 under bracket t1 plus tn. Okay, so with the help of these two formulas, you can calculate, you can evaluate the sum of numbers. Okay, so now let's see the second question. What is the second question? Find the sum of first 123 even natural numbers. Even natural numbers, even. Okay, just pay your concentration over here. First 123 even natural numbers, and so first we will prepare. Natural numbers are, you can write down natural numbers are, what are the natural numbers? Natural numbers are 1, 2, 3, so on. Okay, but even natural numbers are first 123 even natural number. Okay, so here you will take first 123 even natural number, 2, 4, 6, 8, so on. Okay, so these are the first 123 even natural number. Okay, it means that you have to find out 123 even natural number. It means that here A will be 2. Okay, A will be 2. This is your arithmetic progression. D will be T2 minus T1. That is 4 minus 2. You will get 2, because in between each even number or odd number there is a difference of 2. हमेशा क्या रहेगा, आप चाहे odd number लो चाहे आप even number लो, उनके बीच में जो difference रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 2 रहेगा. Therefore D will be 2. Okay, D will be 2, A is 2, and what you have to find out? S123. ये आपको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर. देयरफॉर n will be 123. ठीक है, आपको S123 फाइंड आउट करना है. देयरफॉर आप whatever what will be the n will be 123. So see here, आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है. इवन नेचुरल नंबर्स है, तो आपको ध्यान रखना है 2 अगर यहाँ पर ऑड होता तो आप क्या लेते, 1, 3, 5, 7. ओके, so now see, now we write down the formula Sn is equal to, now I told you that there are the two formulas. Okay, the first formula is Sn is equal to n by 2 under bracket 2a plus n minus 1d. और सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका, Sn is equal to n by 2 under bracket t1 plus tn. But here we don't know the last term. यहाँ आपको फर्स्ट टर्म पता है, that is 2, but we don't know the last term. जब आपको लास्ट टर्म पता नहीं है, at that time it is better to use this formula, because we know A, we know D, we know N. Okay, only the need is to find out the S123. S123. Now find out, put up the values. S123 is equal to 123 divided by 2. 2 into, what is the value of A? 2. Okay, plus what is N? 123 minus 1 into 2.
वैल्यू ऑफ डी इज 2। अभी आप जब वैल्यूज पुटअप कर लेते हो, जब आप वैल्यूज को रख लेते हो फॉर्मूला, आपको हमेशा क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपने करेक्ट वैल्यूज रखी है या नहीं। एस 123 फाइंड आउट करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 123। ओके, आपने 123 रखा है, 2 is there already in the formula, 2 is there, okay, 2 is already in the formula, it is there, value of a is 2, so put 2 plus, then plus is there in the bracket, 123 minus 1 already it is there into 2, okay। Now first what we will do, we will solve this bracket, हम पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने में आपको स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको n-1 सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद एडिशन करना है, ओके। सो 123 डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4 प्लस 123 माइनस 1 122 इंटू 2, ठीक है, ये आ गया आपका। देन अगेन 123 डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 प्लस 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 244। now you will add 244, मैं ऊपर का थोड़ा सा वाइट कर देती हूँ, okay, so we will continue। s 123 is equal to 123 divided by 2। अभी हम ब्रैकेट में जाते हैं अगेन, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करना है। 244 plus 4, what you will get, you will get 248। इंग्लिश में आते हैं 248, ओके 248। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, क्या बचा आपके पास 123 into 124, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 15,252, 15,252, this is S123, ये आपके सामने। So you can take the screenshot of this, okay। क्या था हमारा क्वेश्चन, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 123 even natural number, even number is the more concentration will be on the word even number, क्योंकि अगर odd number होता तो यहाँ पर आपकी सब वैल्यू करेक्ट होती, ओनली द वैल्यू ऑफ ए विल बी चेंज, वो आपका 3 हो जाता, 3 होने की वजह से आपका आंसर डिफरेंट हो जाता, सॉरी 1 हो जाता, आपका आंसर डिफरेंट हो जाता। तो यहाँ पर देखो आपका इवन नंबर जो था वो फर्स्ट इवन नंबर आपका 2 है, सेकंड 4 है, थर्ड 6 है, देन 8, देन सो ऑन, ओके। सो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, देन वी नो द वैल्यू ऑफ एन, ओके। हमने फिर क्या किया, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला आपको लिखना है, इट कैरीज मास Sn is equal to n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a plus n minus 1d। फिर हमने वैल्यूज को पुट अप किया, वैल्यूज को हमने लिखने के बाद हमने क्रॉस चेक किया कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, इट वाज करेक्ट। फिर हमने क्या किया, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्शन किया है, 123 minus 1 we got 122, then we done multiplication, okay, हमने मल्टीप्लिकेशन किया, we got 244, then we have done the addition, we got 248, then we simplified this 248 by 2, we got 124, then we done the multiplication between 123 and 124, then we got 15,252. So this is your answer. I hope you understand this question, you understand the solution, but still if you have some doubts you can ask me in the last 5 minutes, okay? Okay, so now the third question of practice set 3.3, page number 72. Now see the question,
carefully. Find the sum of all even numbers between 1 and 350. Find the sum of all even numbers between, ये ओल्ड टेक्स्ट बुक में इट वाज फ्रॉम, यहाँ बिटवीन नहीं था, फ्रॉम था. ओके, नाउ सी आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350. अब देखो बिटवीन जब आता है, अगर मैं आपको बोलूंगी रन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पोल, so it means that there is no need to touch the first pole and the last pole or the second pole, है ना. अगर मैं आपको बोलूंगी ओके कि आपको इन दोनों के बीच की लेंथ को आपको मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट टच दिस फिंगर, you will not take this side of finger, okay, because I told you in between of these two fingers. मतलब आप ये दोनों फिंगर्स को आप काउंट नहीं करोगे, आप इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे. बट इफ आई विल से measure the distance between these two fingers, okay, from one finger to second finger, measure the distance, then from this finger ना, तो आप यहाँ से लोगे टिप ऑफ दिस फिंगर, इससे लेकर आप इस फिंगर तक आप इसको पूरा मेजर करेंगे. मतलब जब फ्रॉम आता है, अगर आपको पूछा है कि फ्रॉम, इट मीन्स दैट यू विल इंक्लूड बोथ द पोल्स. बट अगर आपको आता है बिटवीन, यू विल एक्सक्लूड बोथ द पोल्स. तो यहाँ पर आपको बोला है बिटवीन 1 and 350. फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स between 1 and 350. So it means that अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एपी बनाना पड़ेगा. ओके, इवन नंबर्स between 1 and 350 are, क्या रहेगा? बिटवीन 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा. अब 350 जो है वो भी इवन नंबर है. इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स एट द यूनिट प्लेस मस्ट बी 0, 2, 4, 6, 8. अगर आपके यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो दे आर इवन नंबर्स. तो 350 क्या इवन नंबर है, बट क्या बोल रहा है? बिटवीन बोल रहा है ना. तो आप 350 नहीं लोगे, आपको इससे एक्सक्लूड करना है. आप इससे पहले वाला इवन नंबर लोगे. 349 इससे पहले है, दैट इज ऑड नंबर, उससे पहले 348 है, तो आप लोगे 348. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर बोला है 1 and 350 के बीच में. ठीक है, तो हमने 349 छोड़ दिया, 348 लिया है. 350 भी इवन नंबर था. अगर यहाँ पर फ्रॉम होता, फ्रॉम 1 to 350, तो आप फिर 350 लेते यहाँ पर. तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है. ओके, अभी हमको क्या है, हमें क्या पता है, हम देखते हैं पहले. यहाँ पर a is 2, d is t2 minus t1, 4 minus 2 is 2. ओके, अब आपके पास क्या है? ये क्या है? ये t1, t2, t3, दिस इज tn. ये कौन सा टर्म हमें पता नहीं है. दिस इज tn. tn is 348. वी डोंट नो n, हमें पता ही नहीं है कि n कितना है. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने इवन नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 350. इसको देखो, एज ये क्वेश्चन है ना, आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना है. पहली स्टेप में आपको n फाइंड आउट करना है. जब आपका n मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल मिल गया 174, फॉर एग्जांपल 174 मिल गया आपका, तो तब आपको क्या करना है? आपको S174 फाइंड आउट करना है. आंसर विल बी 174 ओनली, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. फॉर एग्जांपल 150 मिल गया, तो आपको S150 फाइंड आउट करना है. लेकिन हमें पहले ऐसे क्वेश्चन में जहां हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हमें पता नहीं है, तो पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला Tn. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम 2 फॉर्मूला का यूज करेंगे. पहले हम Tn का यूज करेंगे. Tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1d. हमें Tn पता है, हमें a पता है, हमें d पता है, हमें n नहीं पता है. ओके, तो क्या करेंगे? हम पहले n फाइंड आउट कर लेंगे.
जब हमें n मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला Sn का। ठीक है, तो याद रखना है आपको इस टाइप के फॉर्मूला में जहां पर आपको पता नहीं होता है वैल्यू ऑफ n, आपको ऐसे फॉर्मूला में आपको पहले n फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर मैं दो पार्ट कर देती हूँ इस क्वेश्चन के। इस पार्ट में हम tn सॉल्व करेंगे, इस पार्ट में हम Sn सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें tn सॉल्व करना है। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। और इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, हमें तो सम फाइंड आउट करना है ना, तो हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, विच इज कॉमन फॉर्मूला। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले हम tn फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, पहले हम tn फाइंड आउट कर लेते हैं। सो व्हाट इज tn, नाउ सी हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ tn इज 348, value of a is 2 plus we don't know n, we know d। ओके, देखो हमने वैल्यूज को रख लिया है। 348 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 d। ओके, अभी हम क्या करेंगे, पहले ये जो प्लस 2 है उसको ले जाकर उधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 348 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब 348 माइनस 2 करेंगे, व्हाट यू विल गेट, 346 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 346 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 173 is equal to n minus 1. Minus 1 will go there, it will become plus, so n is equal to 174। देखो ये हमने ऐसा सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट 3.2 में, कोई हमारे लिए न्यू नहीं है, ये हमने ये सॉल्व किया है। ओके, हमने ये सॉल्व किया है, tn की हेल्प से हमने n को फाइंड आउट किया है 3.2 में। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। tn का वैल्यू 348 था, हमने रख दिया। a का वैल्यू 2 था, n वी डोंट नो, d का वैल्यू भी 2 था। सबसे पहले हमने क्या किया, a की वैल्यू को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर गए, प्लस 2 से माइनस 2 हो गया। सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिला 346। फिर हमने क्या किया, 2 जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में था राइट हैंड साइड में, हमने उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर डिवीजन फॉर्म में कर दिया है। वी गॉट 173, देन माइनस 1, उसको हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, इट बिकम प्लस 1 एंड वी गॉट 174। इट मींस दैट बिटवीन 1 and 350, मतलब 1 and 350 के बीच में 174 इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, हम इतने उनके बीच में है। ठीक है, अगर हम ये 350 ले लेते तो एक नंबर और बढ़ जाता, 175 हो जाता, लेकिन बिटवीन था इसलिए हमने उसको नहीं लिया, तो हमारे पास आंसर आया 174। अब देखो, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एसएन का एक ये फॉर्मूला है और हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी है, T1 प्लस Tn, ये भी है। अभी देखो हमारे पास हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं राइट नाउ, बिकॉज वी नो T1 इज 2, Tn इज 348, ये है हमारे पास, A भी है हमारे पास, N भी है हमारे पास, D भी है हमारे पास, तो हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्मूला है वो इजी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला के कंपैरिजन में विच वाज इजी वी विल टेक दैट फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है ना वो बहुत इजी है, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड फॉर्मूला लेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट T1 प्लस Tn। S 174 is equal to 174 upon 2. T1 is 2, Tn is 348, 174 upon 2, पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 348 में 2 ऐड करेंगे, so we get 350। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10, so 174
मल्टीप्लाइड बाय 175। अब देखो यहाँ पर, अब आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। यू विल गेट 30,450 is 174. So this is your answer. Okay? ये फॉर्मूला बहुत इजी होता है। आपके पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तब आप क्या करो, इसी फॉर्मूला का यूज करो। इट विल बी इजी फॉर यू। इफ यू वांटेड टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें इन नहीं पता था, इन नहीं पता था। इन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने टीएन का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, टीएन के फॉर्मूला यूज करके हमने पहले इन की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसके बाद हमने एस फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इसको 2 स्टेप में करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दोनों फॉर्मूला का यूज करना है, टीएन का भी और एसएन का भी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। Okay, now see, if you want to take the screenshot, take the screenshot. Okay, now the fourth question. Now see the fourth question. In an AP, नाइनटीन्थ टर्म इज, इस टाइप का क्वेश्चन हमने उधर सॉल्व किया था। हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, 52 एंड 38th टर्म इज 128. Find the sum of first 56 term. Okay, this is your question. अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें n पता है, हमें ये पता है कि हमें S56 फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है ना कि A क्या है, D क्या है। ठीक है, हमें ये पता ही नहीं है। In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. In an AP, 19th term is 52, मतलब T19 आपका 52 है एंड T38 आपका 128 है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको सम ऑफ फर्स्ट 56 सम आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ T19 52 दिया हुआ है, आपको T38 128 दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको S56 फाइंड आउट करना है। लेकिन S56 फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। आपके पास a भी नहीं है, आपके पास d भी नहीं है, तो पहले आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले हम इक्वेशन प्रिपेयर करके, पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, इक्वेशन प्रिपेयर करके हम a और d फाइंड आउट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। हम इसको अगेन क्या करेंगे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी 2 पार्ट में सॉल्व किया था। हमने फर्स्ट पार्ट में n फाइंड आउट किया था और सेकंड पार्ट में हमने s फाइंड आउट किया था। अभी भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम a और d फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ओके, और फिर सेकंड पार्ट में हमें 56 फाइंड आउट करेंगे। तो सी दिस इज द ओके, आई विल गिव इट पार्ट 1 फॉर योर कन्वीनियंस कि भाई इसको कितने पार्ट में सॉल्व करना है। T19 है आपके पास, ओके 52 है आपके पास। हम इसको क्या करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हालांकि अब ये तो डायरेक्टली लिखना चाहिए आपको, T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1d। 19 माइनस 1d, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि t के साथ जो भी वैल्यू रहेगी उससे एक कम करके d के साथ लिखना है। तो T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d। अब T19 की वैल्यू कितनी है, 52, तो 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d।
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, सेकंड इक्वेशन भी ऐसे ही करना है आपको। T38 is equal to 128, Tn is equal to a plus n minus 1d, T38 is equal to a plus 38 minus 1d, T38 का वैल्यू कितना है आपका 128 is equal to a plus 37d. So this is your second question equation. देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने T19 से निकाली है, a plus 18d is equal to 52. 19 था तो 18 हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है ना, 38 रहेगा तो 37 हो जाएगा. Now take equation 1 and 2. ठीक है, हम दोनों इक्वेशन को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. a plus 18d is equal to 52. a plus 37d is equal to 128. माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा. 37 में से हम निकालेंगे 18 तो आपको मिलेगा 19 माइनस 19d. यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 हो जाएगा 4. ओके, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7. माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 76 अपॉन 19. ओके, तो 19 4 जा कितना होता है 76, तो आपका d का वैल्यू आ जाएगा 4. ओके, आपका d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. 76 अपॉन 19. ओके, 76 अपॉन 19 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. अब हम क्या करेंगे, अब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, हमने पहले यहाँ पर दोनों इक्वेशन निकाली है, उसके बाद हमने सॉल्व किया है d के लिए. नाउ पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम रख लेते हैं a प्लस 18d इज इक्वल टू 52. So a plus 18 into 4 is equal to 52. A plus 4 8s are 32. 4 1s are 4 and 3 72 is equal to 52. So A is equal to 52 minus 72. Reverse subtraction, A is equal to minus 20. आप जब 72 में से 52 निकालेंगे आपको 20 मिलेगा, बट माइनस के साथ मिलेगा. तो देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, बहुत अच्छी समझ लो फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में मैंने दो इक्वेशन बनाई है, T19 और T38 से. बहुत सिंपल, इतना लेंथी दिख रहा है वो, लेकिन जब आप करना शुरू करोगे ना आपको इतना इजी लगेगा, ये एकदम फ्लो में जाएंगे आप. पहली इक्वेशन आई हमारे पास, हालांकि मैं चाहती थी ये डायरेक्टली इक्वेशन बनती थी, क्योंकि अब आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि T19 है ना, तो a प्लस 18d आएगा, 19 माइनस 1 18d आएगा इज इक्वल टू 52. ये 38 है ना, तो 37 आएगा, a प्लस 37d इज इक्वल टू 120. ये वन लाइन क्वेश्चन था जिसको हमने इतना बड़ा इलेबोरेट किया. दोनों इक्वेशन को लिया हमने, सब्ट्रैक्शन किया, a एंड a कैंसल, 37 माइनस 18 किया, माइनस 19 आया हमारे पास. 128 माइनस 52 किया, 76 आया हमारे पास, दोनों माइनस कैंसल हो गया. फिर हमने क्या किया, d इज इक्वल टू 76 अपॉन 19 किया, हमारे पास 4 आया. फिर हमने उस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप किया है. इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52. फिर हमने मल्टीप्लीकेशन किया, 18 मल्टीप्लाई 4 वी गॉट 72. 72 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर गए, हमने अगेन वहां सब्ट्रैक्शन किया, वी गॉट माइनस 20 एज इट इज रिवर्स सब्ट्रैक्शन. ओके, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है a की और d की. टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको वाइप करती हूँ. a और d की वैल्यू
अब हम फाइंड आउट करेंगे A56. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन विच वी फाउंडेड द वैल्यू ऑफ D and A. ओके ओके, नाउ अब हम करते हैं सेकंड पार्ट जो बहुत सिंपल है हमारे लिए. ओके हमको सेकंड पार्ट में 56 फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास A इज इक्वल टू -20 आया है, B इज इक्वल टू 4 आया है, और अब हमें फाइंड आउट करना है A56. इसलिए n की वैल्यू कितनी रहेगी? 56 रहेगी. ओके n की वैल्यू 56 है, A56 हमें फाइंड आउट करना है. A की वैल्यू हमारी -20 है और D की वैल्यू हमारी 4 है. ओके अब हम लिखेंगे फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. अब हम यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन हमें लास्ट टर्म नहीं पता है. ओके A56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2 into वैल्यू ऑफ A इज -20 n की वैल्यू 56 -1 D की वैल्यू आ गई आपकी 4. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह, या आप इसको कैंसिल कर सकते हो. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28. सिंप्लीफाई अगर होता है तो आप कर सकते हैं इसको. अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो. तो 22 जा 40 -40. ओके प्लस अब हम इसको करेंगे 56 - 1 55 into 4. ठीक है अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 28 -40 प्लस 4 5 are 20, 4 5 are 20 and 1 21, 22. So we got 2 20, 28. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस माइनस करेंगे. So 220 - 40 you will get 180 into 180. Put up the 0. आप 0 पुट करके 28 into 18 करेंगे तो आपको मिलेगा 504. So your answer will be 5040. is 56. देख लो अच्छे से आपने कैसे किया है. लेंगी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकता है. हर एक की एक, क्योंकि हमने इसमें इक्वेशन बनाई है तो ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए ही है ये क्वेश्चन. हमने पहले इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट किए. लेकिन ये क्वेश्चन इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था दोनों में हमने 2 स्टेप को फॉलो किया है. सो बोथ विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. ओके तो यहाँ पर देखो हमने पहले T19 की निकाली थी हमने इक्वेशन. आपको अब ऐसे बिल्कुल आना चाहिए T19, तो आपको आना चाहिए a प्लस 18d इज इक्वल टू 52. T38 तो आपको आना चाहिए a प्लस 37d इज इक्वल टू 120. यही की यही इक्वेशन बन जानी चाहिए. आपको आया ना ये क्वेश्चन, आप वहीं की वही इक्वेशन बना दो. आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखो और ये करो, आप इक्वेशन बना दो. ओके सिर्फ आप लिख सकते हो रेफरेंस फ्रॉम द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d और दोनों इक्वेशन बना दो. डायरेक्टली बना दो. आपकी स्टेप कम हो जाएगी, आपका हेडेक कम हो जाएगा, आपको इतना ज्यादा वो लेंथी नहीं लगेगा, है ना. 19 है ना तो क्या आएगा a प्लस 18d. 38 है ना तो क्या आएगा a प्लस 37d. ओके ठीक है ऐसे करके 2 इक्वेशन बन जाएगी आपकी. वहीं की वहीं कैंसिल करो उसको. a की वैल्यू d की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, दोनों मिल गई हमारे पास. फिर हमने s का फॉर्मूला लिखा, S56 इज देयर, n की वैल्यू 56 है तो हमने a और d की वैल्यू को पुटअप किया है, फिर उसको सॉल्व किया है जैसे हम करते हैं. पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किए हैं सब. 22 जा 40 हो गया, हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया. 56 अपॉन 2 28 आया है. 56 - 1 55 आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 220 आया. 220 ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हुआ, लेकिन साइन जो रहेगी वो प्लस की यहाँ पर लगेगी, इसलिए 180 पॉजिटिव है नॉट निगेटिव. और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया. टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल डू द अनदर एक्टिविटी.
एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इज गिवन टू यू, द फिफ्थ क्वेश्चन, लेकिन हम उसको एक्टिविटी फॉर्म में नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम उसको एक्टिविटी में फिल करेंगे, हमेशा यही करना है, ठीक है। ओके, so now the fifth question is, पहले क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ मैं। Complete the following activity to find the sum of natural numbers between 1 and 140 which are divisible by 4. अगेन बिटवीन आया है, मतलब आपको 140 ड्रॉप करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिया होगा पेज पर, ये ड्रॉप किया हुआ है, आपको यहाँ पर 136 लास्ट नंबर दिया हुआ है ना, 136 लास्ट नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो कि 140 उसने नहीं लिया है ना, 140 नहीं लिया है। हालांकि 140 क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 4। 144 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। 4 3 12, 2 रिमेनिंग रहेगा, 4 5 20, है ना, तो आपको आंसर मिलेगा। लेकिन नहीं लिया है क्योंकि वहां पर क्या आ गया था, वहां पर बिटवीन आ गया था। आप लेफ्ट मत हो, अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हो ना तो आप अपनी डिसकंटिन्यूटी बनाते हो। मैथ्स है ये, मैथ्स में ऐसा होता है कि अगर आपको एक स्टेप में समझी ना तो आप पूरा दिन कंफ्यूज रहोगे कि ये कैसे आया है। आप लेफ्ट फिर ज्वाइन, लेफ्ट और ज्वाइन ये मत हुआ करो। आपका नेटवर्क इशू है तो जहां पर भी आपका अच्छा नेटवर्क आता है आप वहां पर जाकर बैठो, जिनके पास अच्छा नेटवर्क आता है उनके साथ बैठो, ठीक है। क्योंकि मैथ्स ऐसा है ना कि जिसमें अगर आपको एक स्टेप नहीं समझ में आई तो आप दिन भर परेशान रहोगे, और आपको अगर एक स्टेप नहीं समझी तो आपको आगे का समझने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। You will face the problem when you will do the practice. Okay, so pay concentration. If you have joined, then do the pay your concentration full, and then solve and then practice, because math is the name of practice. Practice makes man perfect. So that's why I am telling you practice makes math perfect. Okay. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, आपके पास बुक होगी पेज नंबर 72 पर, आपको एक्टिविटी में दिया हुआ है बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4। आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 4 8 12 16 डैश 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 136 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ डायरेक्टली सॉल्यूशन। नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4, ऐसा हमने सॉल्व किया है। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, आर आपको दिया हुआ है 4 8 12, द लास्ट नंबर इज 136। लास्ट नंबर 136 इसलिए लिया है क्योंकि आपको बिटवीन बोला था, अगर वन फ्रॉम बोलता तो आप 140 लेते, ओके। हालांकि 140 है डिविजिबल, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर क्या करेंगे, अब हम रख देते हैं एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अभी हमारे एक्टिविटी में हमको ये काम की चीज मिली है कि हमको एपी बनाने ऑलरेडी बना कर दिया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत इजी जाएगा एपी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एपी दिया हुआ था, तो अब हम इसको भी अगेन 2 स्टेप में करेंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना क्या क्वेश्चन है। complete the activity to find the sum of natural numbers between 1 and 140 which are divisible by 4। कि 1 and 140 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 4 है उनका सम फाइंड आउट करना। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कितने हैं, कितने हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 and 140 which are divisible by 4। ओके, उसको मालूम करने के बाद after that we will find out that what is the sum of that number। ओके, तो हम इसको अगेन 2 स्टेप में करेंगे। अब हम देखेंगे नहीं हमारी एक्टिविटी में क्या है, आपको जहां पर प्रॉब्लम्स आएगी हम वहीं पर देखेंगे, ओके। हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास ए दिया हुआ है 4, डी भी हमारा क्या आएगा T2 माइनस T1, 8 माइनस 4 4 आएगा। Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, क्योंकि अभी हमें Tn पता है ना, Tn हमारा 136 है, Tn हमारा 136 है, अभी हमें n फाइंड आउट करना है। 136 इज इक्वल टू 4 प्लस n पता नहीं हमें,
डी की वैल्यू 4। पहले माइनस होगा 136 माइनस 4 इज इक्वल टू n minus 1 into 4. 136 minus 4. You will get 6 minus 4 2. 132 is equal to n minus 1 into 4. अब ये 4 जाके वहां पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 132 upon 4 is equal to n minus 1. 4 3s are 12. 4 3s are 12. So 33 is equal to n minus 1. Minus 1 will shift there. 33 plus 1 34 is equal to 8. तो ऐसे कितने नंबर्स है? 34 है। ओके, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 and 140? 34 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 and 140. अब n आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट सम भी है, फर्स्ट सम भी है ना। देखो ये फर्स्ट सम हमारे पास T1 is 4, Tn is 136, n is 34, है ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn is equal to n by 2 अंडर ब्रैकेट T1 plus Tn। S34 is equal to 34 upon 2, 4 plus 136, है ना। ये इजी है हमारे लिए। हालांकि वहां पर आपको फॉर्मूला एसएन वाला दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला एक्टिविटी में एसएन का दिया हुआ है, तो आपको एसएन से भी सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि हमारा आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन हमको एक्टिविटी में यही दिया हुआ है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। एसएन इज इक्वल टू n by 2 वरना अगर वो ऐसा नहीं दिया हुआ रहता ना तो हमारे लिए इजी होता वो फॉर्मूला, लेकिन आपको एक्टिविटी में जो दिया हुआ आप वही करेंगे। n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1d। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुटअप करने के बाद डायरेक्टली आंसर आपको लिखना है वहां पर। S34 इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 2 into 4 प्लस 34 minus 1 into 4। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 4s are 8 प्लस 34 minus 1 33 into 4। ओके, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। 17 8 प्लस 4 3s are 12, 4 3s are 12 and 1 13 132 132 प्लस 8 140, तो 17 into 140। देखो अगर हम है ना, इससे पहले देखो अगर मैं T1 plus Tn लेती, T1 हमारा क्या था 4 और Tn क्या था हमारा 136, तो 136 में 4 मिलाती तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कितना आता, 140 आता, एक ही स्टेप में आ जाता। कितनी स्टेप में सॉल्व करनी पड़ती, 140 आया तो उसमें भी आता, 34 अपॉन 2 17 आता। दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, राइट डाउन 0 और फिर 14 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 238, so 2380। अब आपने ये सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है अब उसमें डायरेक्टली क्या करना है, फिलिंग स्टार्ट करना है ना। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी देखो हमारे पास एक्टिविटी में क्या क्या दिया हुआ था। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ था हाउ मेनी नंबर्स n इज इक्वल टू, डायरेक्टली पूछा था हाउ मेनी नंबर्स n इज इक्वल टू, बॉक्स दिया हुआ था, आप n इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 34 लिखेंगे। पूरी एक्टिविटी ये पूरा आप सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व करने के बाद आपको जो एक्टिविटी दी हुई है एज इट इज कॉपी करो, एज इट इज, डोंट डू एनी चेंजेस ओवर देयर। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लो, आप रफ पेज पे सॉल्व करो इसको। एक्टिविटी एज इट इज कॉपी करो wherever you are writing the answers, ओके, आंसर शीट पर। उसके बाद एक्टिविटी में आपको क्या बॉक्सेस दिए हुए आप उसको डायरेक्टली फिलअप करना स्टार्ट करो। तो आपको पहले दिया हुआ था n इज इक्वल टू बॉक्स 34 आएगा, फिर आपको दिया हुआ था n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, तीनों वैल्यूज पूछा है, n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू और d इज इक्वल टू। n इज इक्वल टू 34, a is equal to 4, b is equal to 4।
आपने ये तीनों बॉक्सेस फिर फिलअप कर दिए। फिर आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, फिर आपको दिया हुआ था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, फिर आपको वैल्यूज पुटअप करने के लिए कहा था। 136 इज इक्वल टू बॉक्स प्लस n माइनस 1 बॉक्स, मतलब आपको a और d की वैल्यू को ड्रॉप किया था, तो आपको वहां पर लिखना रहेगा a और d की वैल्यू। तो a और d की वैल्यू कितनी है, वहां पर 4 है, ठीक है। उसके बाद आपको n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, 34 आ गया। फिर आपको Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1d। उसके बाद वैल्यूज पुटअप करना था, s बॉक्स दिया हुआ है, n की जगह 34 आएगा। फिर आएगा n बाय 2, तो वहां पर 34 बाय 2 आएगा। फिर अंदर पूरी वैल्यू को पुटअप करना था, मतलब ये वाली स्टेप, ये a 34 बाय 2, 2 इंटू 4 प्लस 34 माइनस 1 इंटू 4। तो ये आपको पूरी वैल्यूज पुटअप करने के लिए वहां पर कहा था। उसके बाद आपको डायरेक्टली बॉक्स दिया है फॉर द आंसर, तो आप वहां पे लिख सकते हो 2380, ठीक है। सो हियर टुडे आई फिनिश्ड, मैं यहाँ तक ही फिनिश कर रही हूँ आज आप लोगों का, बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम, बट स्टिल इफ यू हैव अ डाउट वी हैव 2 minutes, you can ask me your doubts, ask me your doubts. Unmute yourself fast, unmute yourself. जिसको डाउट है raise your hands, raise your hand those who have a doubt. आपको समझ में आना चाहिए हर क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व किया है। ऑलवेज वी गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमने पहले बहुत सिंपल सॉल्व किया है, उसके बाद हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व किया है। बट इफ यू आर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स, इफ यू आर अटेंडिंग फ्रॉम 8:55 to 9:40, then you will understand definitely. You will not get any type of confusion because I am repeating again and again all the answers, all the steps, okay. But still if you have a doubt, you can ask me the doubts, okay. Ask your doubts. Last year the students, they are bringing a lot of questions because they were solving the questions. So I am just expecting from you all that bring such type of questions from practice books or from reference book. RD Sharma book, RD Sharma book is there, you can download this book. आप इस book को download कर सकते हैं, RD Sharma मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 book। आप उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत यहाँ पर इनसफिशिएंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है ऑफ द सेम टाइम, 1 क्वेश्चन इज आल्सो देयर, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप इस बुक को डाउनलोड करो। यस, वहां से क्या तो ऊपर से बताओ ना, क्या बताने, सॉरी। वो जो आपने अभी बताया ना, तो मतलब मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ वो वाला ही बेटा ये क्वेश्चन अभी आप ज्वाइन हुए हो, टाइम फिनिश हो चुका है। ये क्वेश्चन जो था वो था बिटवीन 1 and 140 नंबर्स, कितने ऐसे नेशनल नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर्स हैं। उसके लिए आपको, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को कि अगर आप लोग कंप्लीट लेक्चर ज्वाइन करते हो इधर ऑन यूट्यूब और जूम, यूट्यूब पर भी अगर आप देखते हो, लेकिन लास्ट अगर आप ज्वाइन करके आप यानी पूछ सकते हो, फिर आप या नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ था कि आपको n की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी थी, तो विद द हेल्प ऑफ tn फॉर्मूला हमने n की वैल्यू पहले फाइंड आउट की है। जब n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है उसके बाद हमने Sn का फॉर्मूला यूज किया। अभी इतने शॉर्ट टाइम में अगर आपको एक भी स्टेप नहीं समझ होती तो मैं आपको समझा देती थी। आप कल जल्दी ज्वाइन करो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। यस टीचर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, in the first activity, the third box fill how many numbers, therefore n is equal to what we have to write it there also. So we have to write 34 only. Question mark, because before the now see in the activity, in the same question na, in the same question. Yes ma'am. Yes okay, ma'am. so in the same question, yeah, in the same question now see here. First, what is given to you? 4, 8, which is given to you. How many numbers n is equal to? So write down their question mark, or you can write down x also, but you have not supposed to. You can write down question mark, you can write down x or y, because we don't know n. After that, again it is the 3 boxes are there. N is equal to, a is equal to, d is equal to. Again
You write down the value of A is equal to 4, D is equal to 4, but you don't know the value till this step. You don't know the value of L. So write down the X, Y or a question mark. After writing the formula Tn is equal to A plus N minus 1D, after writing this formula, it means that you started to solve this question. After that, you write down the value of N is equal to 34. Okay, got it? ठीक है? So shall I wind up, ma'am? Yes, ma'am. Okay.